Hello students and learners, welcome to the BrainBox tutorials. I am your teacher Priyanka and today we will discuss the biology specimen question paper of ICSE semester 1 examination. Okay? देखो ये भी 40 मार्क्स का पेपर है और टाइम अलाउड 1 आवर है, इंक्लूसिव ऑफ रीडिंग टाइम है. जैसे सारे पेपर्स में वैसे ये है. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. ये भी MCQ ही होंगे सारे, तो वी विल हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. सेक्शन 1 15 मार्क्स का है. 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे सारे ABCD करके दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो. अच्छा, इन सब में क्या करना है ये देख लो. ऊपर लिखा है नेम द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. तो नंबर ए है a pair of corresponding chromosomes of the same shape and size but one from each parent. This is autosomes नहीं, sex chromosome नहीं, homologous chromosome is the correct option. Okay, number B, the factor that does not affect the rate of transpiration. So remember, rate of transpiration को क्या क्या चीज़ें affect करती है. नंबर 1, intensity of light, yes it affects rate of transpiration. velocity of wind ये भी affect करती है. कार्बन डाइऑक्साइड भी affect करता है. ऑक्सीजन affect नहीं करता, तो ऑक्सीजन is the correct option. Number C, movement of molecules of a substance from their higher concentration to lower concentration when they are in direct contact. Higher concentration से lower concentration में movement of molecules, तो that will be diffusion. Question D, the complex molecule consisting of a DNA strand and a core of histones. 8 हिस्टोन प्रोटीन और DNA मिलकर के जो बनाते हैं, that is called nucleosome. तो नंबर 3 ऑप्शन इज राइट. नंबर ई, द सॉल्वेंट यूज टू डिजॉल्व द क्लोरोफिल पिगमेंट वाइल टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च. तो वो सॉल्वेंट का नाम क्या है. सोडा लाइम, नो. कार्बोलिक एसिड नहीं. मिथाइलेटेड स्पिरिट इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है देखो. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक. ओके, तो फिल इन द ब्लैंक है ये. During meiosis, dash daughter cells are formed. During meiosis 4 to 8 or 6, तो 4 daughter cells are formed. Number B, wooden doors swell up during the rainy season due to imbibition होता है, तो third option is correct option. नंबर सी, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल इज. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है. सेल वॉल तो फुली परमिएबल है. नंबर 2 ऑप्शन जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. भले प्लांट सेल हो कि एनिमल सेल हो, दैट इज सेमी परमिएबल. नंबर डी है गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू. गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्ट्रोमेटा, रॉन्ग. लेंटिसेल्स रॉन्ग. क्यूटिकल इज ऑल्सो रॉन्ग. हाइड्रोथॉट्स ये करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 4. Next, number E, a plant with variegated leaves is. Variegated leaves means एक ऐसा लीव जो ग्रीन भी पोर्शन होता है, थोड़ा येलो पोर्शन भी होता है, तो उसको हम वेरीगेटेड लीव बोलते हैं. तो दैट प्लांट इज कोलियस. नंबर 1 ऑप्शन इज राइट. नाउ क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो. नंबर ए, the pressure exerted by the cell contents on the cell wall. Cell wall पे जो pressure दे cell contents, that is Turger pressure. Number B, the cell component visible only during cell division, that is chromosome. Number C, marine fish when placed under the tap water bursts because of अंडर टैप वाटर रखते हैं तो मरीन फिश बर्स्ट बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नंबर डी, द साइट्स ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में होता है. लाइट रिएक्शन होता है, फिर डार्क रिएक्शन होता है. तो डार्क रिएक्शन जो है दैट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा. ग्रेना और स्ट्रोमा 2 पार्ट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के. ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में. नंबर ई, the alternative forms of the same gene occupying the same position on homologous chromosomes, that is alleles. So alleles is the correct option. Now section 2, that is also of 15 marks. उसमें आता है अपना question number 4, explain the following terms. Osmosis, what is osmosis? तो नंबर 1 में लिखा है movement of water from their lower concentration to their higher concentration, this is wrong.
Movement of solutes from their lower concentration to higher concentration, this is also wrong. Movement of water from their higher concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane, yes, this is osmosis. So this is correct. Number 3 option is correct. Next is photolysis. Photolysis is splitting of water molecules into hydrogen ions and oxygen in the presence of light in grana. This is correct. This is correct definition of photolysis. Law of segregation. Now this is from the chapter genetics. Mendel's law of inheritance में है ये law of segregation. तो law of segregation क्या है? Number 1, the two members of a pair of factors join during the formation of gametes. No, wrong. The two members of a pair of factors separate during the formation of gametes. Correct option is number 2. Next, number D, guttation. The loss of water in the form of water droplets from the surface of the leaf. Loss of water होता है guttation में in the form of water droplets होता है, but not from the surface of leaf. तो this is wrong. Loss of water in the form of water droplets through the stomata. This is also wrong. Loss of water in the form of water vapor. This is wrong. Loss of water in the form of water droplets along the leaf margin. This is correct option. Along the leaf margin होता है. Number E, active transport. Passage of water from its lower to higher concentration through a cell membrane without any expenditure of energy. This is wrong. Passage of ions from its lower to higher concentration through a cell membrane without any expenditure of energy. This is also wrong. Passage of water from its lower to higher concentration through a cell membrane using energy from the cell. This is wrong. Passage of ions from its lower to higher concentration through a cell membrane using energy from the cell. Correct option is number 4. Ions pass करते हैं from lower to higher concentration and they use the energy from the cell. Now question number 5. State the exact location of the following. Spindle fiber का location पूछ रहा है. Between the two centrioles, between the two centrosome, between chromatid and centromere and between two centromeres. तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो between two centrioles हमको दिखाई देते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1. नंबर बी, रूट हेयर. रूट हेयर कहाँ लोकेटेड होते हैं? एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्टेक्स, एक्सटेंशन ऑफ एपिथेलियम, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस. यस, दिस इज करेक्ट. एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस में रूट हेयर होते हैं. नेक्स्ट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा मोर द अपर सरफेस ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीव्स, more on the lower surface of the dorsiventral leaves. Right, correct option is this. Lower surface में हमको दिखाई देते हैं ज़्यादा leaves के. Okay, next is thylakoids. कहाँ पे होते हैं? In the inner membrane of chloroplast, wall of the chloroplast नहीं, in the chlorophyll, in the stroma of the chloroplast. Stroma में दिखते हैं हमको ये. तो correct option is number 4. Next, palisade parenchyma. Palisade parenchyma कहाँ होते हैं? Between the upper and lower epidermis of dicot leaves. This is wrong. Between the upper epidermis and spongy parenchyma of dicot leaves. This is correct option. Upper epidermis और spongy parenchyma के बीच में हमको palisade दिखता है. Question number 6. State the function of the following. तो स्ट्रोमा का क्या फंक्शन है? इट इज साइट ऑफ फोटोलिसिस और फोटोसिंथेसिस. नो, दिस इज रॉन्ग. साइट ऑफ फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. रॉन्ग. साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज राइट. लाइट इंडिपेंडेंट फेज का मतलब होता है डार्क फेज. तो डार्क फेज जो है वो स्ट्रोमा में होता है. करेक्ट ऑप्शन 4 है. नंबर बी, गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है? दे रेगुलेट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट. नंबर सी, जाइलम. जाइलम का फंक्शन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. नहीं, दिस इज रॉन्ग. कंडक्शन ऑफ फूड ऑल्सो रॉन्ग. कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड रॉन्ग. कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दिस इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 4. Number D, chromosomes. Chromosomes, we all know chromosomes are the carriers of heredity. So this is correct option number 1. Hydathod. Hydathod helps in transpiration. No, they help in guttation. This is correct. Now comes section 3.
सेक्शन 3 10 मार्क्स के हैं और ये पिक्चर बेस्ड है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये डायग्राम जो है ये सेल डिवीजन का फर्स्ट फेज प्रोफेज दिया हुआ है। Given below is a diagram representing a stage during mitotic cell division. Answer the questions that follows. तो नंबर ए दिया आइडेंटिफाई द स्टेज। तो मैंने अभी बोला था ये प्रोफेज दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पे है क्या, टेलोफेज। नंबर 2 देखो प्रोफेज दिया हुआ है, तो प्रोफेज इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर बी, लेबल पार्ट मार्क्ड एक्स। तो एक्स क्या मार्क किया हुआ है, लेट्स सी द डायग्राम अगेन। ये रहा एक्स मार्क किया हुआ, यहाँ पे ये बीच में दिया हुआ है, क्रोमोसोम के बीच में जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, दिस इज सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर है एक्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सेंट्रोमियर, दैट इज नंबर 3, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर। प्रोफेज के बाद में हमको क्या दिखता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, तो नंबर 4 ऑप्शन मेटाफेज इज करेक्ट। नंबर डी, व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शोन इन द डायग्राम। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शोन इन द डायग्राम, डायग्राम हम देखते हैं। डिप्लॉयड नंबर कितने क्रोमोसोम दिए हैं टोटल, पूरे 1 2 3 एंड 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो 4 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो भी 4 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 3, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन लिखा है। नेक्स्ट नंबर ई, मेंशन वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज। प्रोफेज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, दिस इज रॉन्ग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट वाला डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहला लिखा है आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनल। तो मैंने अभी बोला ये क्लोरोप्लास्ट है, लेट्स सी क्लोरोप्लास्ट लिखा है क्या। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 लाइजोसोम, नंबर 3 राइबोसोम, नंबर 4 में क्लोरोप्लास्ट दिया है, तो दिस इज राइट। नंबर बी, लेबल द पार्ट्स मार्क्ड ए बी एंड सी। ए बी सी क्या मार्क किया हुआ है, देखो ए जो है वो स्ट्रोमा है, नंबर बी ये जो बी है पूरा ये ग्रेना है या ग्रेनम है, एंड नंबर सी एक पार्ट जो है ये दिस इज नंबर सी दिस इज थाइलाकॉइड। तो नंबर ए स्ट्रोमा है, नंबर बी पूरा ग्रेनम है, एंड नंबर सी जो है वो थाइलाकॉइड है। ना अपना जो क्वेश्चन नंबर बी है इसके आंसर्स थोड़े अलग से दिए हुए हैं, तो मे भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ गड़बड़ होगा, सभी ऑप्शन एक जैसे ही हैं और ए बी सी कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा तो अच्छे तरीके से आएगा 1 2 3 4 लिखा हुआ। सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हम इसको नहीं देखेंगे, बट जो ए बी सी लेबल करना होगा तो लेबलिंग तो यही होगा करेक्ट, जो स्ट्रोमा है, नंबर बी ग्रेनम है, एंड नंबर सी थाइलाकॉइड्स है। नाउ नंबर सी लास्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। यूनिट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल इज प्रोटॉन, रॉन्ग, फोटोन, फोटोन इज करेक्ट ऑप्शन। So with this we come to the end of this paper, specimen question paper बायोलॉजी का। अच्छा पेपर था, बहुत ही इजी था, पढ़ा हुआ होगा तो बहुत ही आराम से हो जाएगा तुम लोगों से ये। तो इसको सॉल्व करना, कुछ क्वेरी हो तो इस वीडियो से गो थ्रू कर लेना। आईसीएसई का एक और पेपर बचता है इंग्लिश लिटरेचर का, जो मैं लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे कि जो भी मैं पेपर्स लेकर के आऊँ वो वीडियोस तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।